Good morning to all of you. Today we start example 27. In the last lectures we completed up to example 25. 26 is in homework which I gave you. Now 27. Company's name is Omex Limited. Everyone keep concentration. Omex Limited issued a prospectus inviting application for 20,000 shares of rupees 25 each at a premium of rupees 5 per share. That means company give invitation to the public for subscribing 20,000 shares, and this shares face value is the 25 rupees but called up with a 5 rupees premium. It means total 25 plus 5, total 30 rupees should be called up from each applicant. Now, how this 30 rupees should be called up? So, rupees 10 on application, rupees 10 on allotment, rupees 5 on first call, and rupees 5 on the next and the last of call, second and final call. So, 10 plus 10, 20 plus 5, 25 plus 5, 20. 25 plus 5, 30. So total 30 rupees should be called up in this way. Now, along with allotment, including premium, you see, company say I called up including premium. That means in a 10 rupees, 5 rupees capital and rupees 5 is a premium. Now see, next paragraph. Application were received for 35,000 shares. You know it very well. Company inviting application 20,000 share, but application received for 35,000 share. It means 15,000 shares application is in excess. So this must be rejected. Must be, I said it must be rejected. An allotment made on the application for 20,000 shares because company inviting application for only 20,000 shares. So whatever you received application, it is immaterial. You have to issue maximum 20,000 shares. And now what is the excess application money? So here you have to given confirmly that application money refunded application money, refunded the excess application money. This is the most important point. Now, Mr. Desai, see everyone. Mr. Desai, to whom 800 shares were allotted. The word is most important, allotted. Failed to pay allotment money, and on his subsequent failure to pay subsequent failure to pay first call, and his share were forfeited. That means what? Mr. Desai does not pay on 800 share allotment money, on 800 share first call money, and thereafter it will be forfeited. Now the another, see, this is for the first point. Now this is for the second applicant, Mr. Shah. Here Mr. Desai, Mr. Shah, the holder of 200 share, means he possessed 200 share, failed to pay 2 call. That means another on 200 share first call and second call not paid.
and his share were forfeited after the second call. After the second call means after the second call he is not paying, so company is forfeiting. I draw this line. So that means this line indicate after that the uncalled amount on whatever the share it will be forfeited, that you have to assume. That means मैं जो ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं इसका मतलब ही आपको यही समझना है। पहले तो आपको बताया कि ये 800 शेयर नहीं पे कर रहे फर्स्ट कॉल का, और उसके बाद में मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, इसका मतलब आपको ऐसा समझना है कि ये शेयर जब्त कर दिया। फिर 200 शेयर पे फर्स्ट कॉल भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, और 200 शेयर पे सेकंड कॉल का भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो 200 शेयर, और उसके बाद ये लाइन ड्रॉ किया मीन्स ये भी शेयर जब्त कर लेते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके पर पेमेंट नहीं हुआ है वो जब्त कर ले। अगर आपको जब्ती का पॉइंट दिया है तो ही आपको ऐसा समझना है कि आपको वो जब्त करना है। अगर अनकॉल्ड अमाउंट है, अनपेड अमाउंट है, तो उसका मतलब ऐसा समझ ही नहीं लेना है, ऐसा अज्यूम नहीं करना है कि वो जब्त ही कर ले, आपको पर्टिकुलरली बोला होगा ना। नेक्स्ट, अब क्या करते हैं, तो इसका मतलब टोटल कितना जब्त किया, पहले 800 शेयर फर्स्ट कॉल के बाद, फिर 200 शेयर फाइनल कॉल के बाद। अब क्या कहते हैं, देखो आपके एग्जांपल में ऑफ द शेयर फॉरफिटेड, यहाँ देखो आप ऑफ द शेयर फॉरफिटेड, कितना शेयर फॉरफिट किया है वो आपको समझना है। ऑफ द शेयर फॉरफिटेड, तो टोटल कितना शेयर जब्त किया है, तो 1000। ऑफ द शेयर फॉरफिटेड 800 शेयर वर सोल्ड टू मिस्टर पटेल, 800 शेयर सोल्ड किया है, क्रेडिटेड एज अ फुल्ली पेड अप, इसका मतलब टोटली 25 रुपीज पेड अप, ₹20 पर शेयर मीन्स सोल्ड टू मिस्टर पटेल, क्रेडिटेड एज अ फुल्ली पेड अप फॉर ₹20। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 800 शेयर सोल्ड किया है वो कितने रुपीस में सोल्ड किया है, 20 रुपीस में। और कैसे, एज अ फुल्ली पेडअप। फुल्ली पेडअप का मतलब क्या है, उसके बाद आपको उसके पास से कोई भी अमाउंट कॉल्ड अप करनी नहीं है, मीन्स 20 लिया बाकी का भूल जाओ। तो 25 रुपीज का शेयर आपने 20 में मिस्टर पटेल को सोल्ड आउट कर दिया है, इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, ये जो टोटल तो आपने कितने शेयर जब्त किए थे, 800 प्लस 200, तो टोटल 1000 शेयर। तो इसमें से आपने 800 शेयर जो इश्यू किया वो कौन सा है, तो यहाँ लिखा है देखो, द होल ऑफ मिस्टर देसाई शेयर, मीन्स ये जो 800 शेयर जो आपने जब्त किया था वो ही आपने री इश्यू किया है, वो ही आपने री इश्यू किया है। द होल ऑफ मिस्टर देसाई शेयर, ये आपको समझना है, द होल ऑफ मिस्टर देसाई शेयर। चलो आगे का देखो, मिस्टर देसाई शेयर बीइंग यूज्ड, द कंपनी ट्रांसफर्ड अनपेड मनी टू कॉलिन एरियर्स अकाउंट, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो पहले तो आपको ये समझना है आपने कितने शेयर पे अमाउंट कॉल्ड अप किया था, आपने कितना इन्वाइट किया था, 20,000, लेकिन आपको एप्लीकेशन कितना मिला, तो 35,000। तो पहली जो एंट्री आएगी वो कितने शेयर पे आएगी, 35,000। उसके बाद की जो भी एंट्री आएगी वो कितने शेयर पे आएगी, 20,000 शेयर पे आएगी। ओके, और उसके बाद आपको फर्स्ट कॉल में कितना नहीं मिलता है, तो फर्स्ट कॉल आपको अलॉटमेंट में कितने शेयर के अमाउंट नहीं मिलती है, तो 800, लेकिन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल में कितनी, 800 एंड 200। इसका मतलब फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल में आपको कितना अमाउंट नहीं मिल रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में आपको टोटल अलॉटमेंट में कितना शेयर पे अमाउंट नहीं मिल रही है। तो आपने 20,000 पर शेयर पे अमाउंट कॉल अप किया, लेकिन आपको 800 शेयर पे अमाउंट नहीं मिल रही है। फर्स्ट कॉल में कितने शेयर पे अमाउंट नहीं मिल रही है, तो आपको यहाँ
टोटल 800 एंड 200 1000 शेयर पे अमाउंट नहीं मिल रही है। और ये फाइनल कॉल में आपको कितने शेयर पे अमाउंट नहीं मिल रही है? तो सिर्फ 200 शेयर पे। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हुआ एग्जाम्पल का। अब हम एग्जाम्पल लिखेंगे। तो पहले अब आपको याद रहना चाहिए कौन से बुक्स में एग्जाम्पल लिखना है। तो नाम क्या है कंपनी का? तो आपने देखा है ओमेक्स लिमिटेड। तो लिखेंगे यहाँ जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ओमेक्स लिमिटेड। लिखने का स्टार्ट करो मेरे साथ। जर्नल एंट्रीज इन अ बुक्स ऑफ ओमेक्स लिमिटेड। ओके, तो यहाँ सब आपको मालूम ही है। डेट, पर्टिकुलर, LF नंबर, डेबिट रुपीज एज वेल एज क्रेडिट रुपीज। अब आपको यहाँ एग्जांपल स्टार्ट करना है। तो पहली एंट्री, यहाँ नंबर लिखेंगे। 35,000 शेयर पे आपको 10 रुपीज़ मिल रहा है। आपका अमाउंट कैसे कॉल अप करना है? तो यहाँ जस्ट आपको समझ में आई, इसलिए 10 + 10, उसमें 5 रुपीज़ प्रीमियम है, +5 + 5। अलॉटमेंट में कितने शेयर पे अमाउंट नहीं मिल रही है? 800। फर्स्ट कॉल पे कितने शेयर पे अमाउंट नहीं मिल रही है? 1000 शेयर पे। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? 800 शेयर जब्त कर रहे हैं। और फर्स्ट और फाइनल कॉल पे कितने शेयर पे अमाउंट नहीं मिल रही है? 200 शेयर पे। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? 200 शेयर जब्त कर रहे हैं। ये आपका पूरा एग्जाम्पल का जो समरी है ना, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। वैसे तो ये लिखना नहीं होता है, आपको दिमाग में रखना होता है। तो अब यहाँ से हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। 35,000 शेयर पे एप्लीकेशन का कितना अमाउंट मिल रहा है? 10 रुपीज़ मिल रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 35,000 इंटू 10, बैंक अकाउंट डेबिट तो कितना आएगा? 3,50,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट कितना आएगा? 3,50,000। नरेशन में बोलता हूँ, लिखता नहीं हूँ। ओके, क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 35,000 इक्विटी शेयर इच ऑफ ₹10। उसके बाद ये टेम्पररी अकाउंट था, उसको क्लोज करके तो डेबिट करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,50,000। अब आपको मालूम है कि उसमें 20,000 शेयर ही अलॉट करना है। तो क्या करेंगे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 20,000 शेयर का 10 रुपीज़ के हिसाब से 2 लाख, और बाकी का रिफंड करेंगे। यहाँ प्रीमियम की अमाउंट नहीं है, तो टू बैंक अकाउंट कितने शेयर पे? 15,000 शेयर पे 10 रुपीज़ के हिसाब से कितना आएगा? 1,50,000। 1,50,000। तो यहाँ क्लोज कर दो, अपना सेकंड एंट्री खत्म हो गया। अच्छा, इसके नरेशन क्या लिखेंगे? तो लिखना है बीइंग application money on 20,000 share allotted and excess application money on 15,000 share refunded. Again, application money on 20,000 shares allotted and excess application money on 15,000 share refunded. Now third entry. अब थर्ड एंट्री कौन सी है? तो आपको यहाँ आपको समझना है कि आप क्या कर रहे हैं। 10 रुपीज़ उस पर कॉल्ड अप कर रहे हैं और 800 शेयर पे आपको अमाउंट नहीं मिल रही है। और जो 10 रुपीज़ आप कॉल्ड अप कर रहे हैं उसमें से 5 रुपीज़ का कौन सा है? प्रीमियम का है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले अलॉटमेंट का कॉल्ड अप करो। इक्विटी शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा, कितने शेयर पे कितना अमाउंट? 20,000 शेयर पे 10 रुपीज के हिसाब से 2 लाख। टू 5 रुपीज उसमें कौन सा है? कैपिटल का, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 20,000 शेयर पे 5 रुपीज के हिसाब से 1 लाख, और बाकी का 1 लाख रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम का है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट कितना है? 20,000 शेयर पे 5 रुपीज के हिसाब से 1 लाख। अच्छा, इसमें क्या नरेशन लिखेंगे? बीइंग अलॉटमेंट मनी कॉल्ड अप at rupees 10 each, of which rupees 5 is for premium, of which rupees 5 is for premium। अच्छा, अब क्या करेंगे? तो यहां आप देख सकते हो कि 800 शेयर की अमाउंट नहीं मिल रही है। अब जो 800 शेयर पे अमाउंट नहीं मिल रही है तो उसकी एंट्री कौन सी आएगी? तो 4th पॉइंट, बैंक अकाउंट डेबिट। जो नहीं मिल रहा है उसका कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। अब 800 शेयर पे आप समझ सकते हो कितना रुपीज नहीं मिल रहा है? 10 रुपीज, तो कितना हुआ? 8,000। तो टोटल 2 लाख में से आपको 8,000 नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? तो जो 2 लाख है आपने किसका मंगाया था, कॉल्ड अप किया था? अलॉटमेंट का। तो 2 वो अलॉटमेंट का टेम्पररी अकाउंट था, तो उसको क्लोज कर दो। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट कितना आएगा? 2 लाख। इसमें से 8,000 आपको मिल गया है, तो इसका मतलब बाकी कितना रहा? 1,92,000, 1,92,000। तो ये आपको फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं मिला, उसका बाद किया और बाकी की एंट्री लिखी। अब आप फर्स्ट कॉल का अमाउंट कॉल्ड अप कर रहे हैं, कितना है? तो यहाँ हमने लिखा ही है फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है। तो पर शेयर ₹5, और उसमें 1,000 शेयर का अमाउंट नहीं मिल रहा है। तो पहले अमाउंट कॉल्ड अप करो, तो क्या एंट्री आएगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर पे? 20,000 शेयर पे 5 रुपीज, क्योंकि अभी जब तो नहीं किया है। तो कितना कॉल्ड अप किया? 20,000 शेयर पे 5 रुपीज के हिसाब से 1 लाख। उसमें से आपको 1,000 शेयर का अमाउंट नहीं मिलता है। चलो मंगा आपने कॉल्ड अप किया इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना? 1 लाख। अब क्या नरेशन लिखेंगे? बीइंग allowed apply first call money called up at ₹5 each। अब जो आता है वो बैंक अकाउंट डेबिट, नहीं आता है वो कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, तो ये जो टेम्पररी अकाउंट है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, तो उसको क्लोज कर देंगे। टू
इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट कितना 1 लाख। अच्छा, उसमें से कौन से शेयर पे अमाउंट नहीं मिल रही है, आपको कितने शेयर पे अमाउंट नहीं मिल रही है, तो 1000 शेयर पे अमाउंट नहीं मिल रही है 5 रुपीज़ के हिसाब से। कितना आएगा 5000। तो 1 लाख में से आपको 5000 नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब कितना मिलेगा 95,000। अच्छा, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल मनी, सॉरी, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव एक्सेप्ट ऑन 1000 शेयर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने यहाँ देखा होगा कि आप क्या कर रहे हैं कि जो फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं मिलता है उसके बाद 800 शेयर आप क्या कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं। तो जब्ती का क्या पॉइंट आएगा, तो यहां मैं आपको उसका एक छोटा सा समरी लिखता हूं जो हमने आगे भी देख लिया है। टोटल कितना शेयर जब्त करना है, तो मिस्टर देसाई का 800 शेयर। ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको मालूम पड़ जाता कितना उस पर कॉल्ड अप किया है, तो एप्लीकेशन का 10, अलॉटमेंट का 10 और फर्स्ट कॉल का 5, मीन्स टोटल कितना कॉल्ड अप किया है 25 रुपीज़। अब ये 25 रुपीज़ में आपने कैपिटल का कितना कॉल्ड अप किया है और प्रीमियम का कितना कॉल्ड अप किया है, तो कैपिटल और प्रीमियम। अच्छा, प्रीमियम का कितना था 5 रुपीज़, तो बाकी का 25 रुपीज़ में से 5 रुपीज़ प्रीमियम, तो 20 रुपीज़ कौन सा आया, कैपिटल। उस 20 रुपीज़ में कितना पे किया है और कितना पे नहीं किया है, तो पेड कितना और आउटस्टैंडिंग कितना, तो आपको मालूम है कि ये अलॉटमेंट का भी नहीं पे किया है, ये फर्स्ट कॉल का भी नहीं पे किया है, तो उसका मतलब पे किया है 10 रुपीज़, और पूरा 10 रुपीज़ एप्लीकेशन के साथ जो था वो पूरा किसका था, कैपिटल का था। तो 10 रुपीज़ कैपिटल का 20 रुपीज़ में से पे किया है और आउटस्टैंडिंग बाकी का 20 है, और जो 5 रुपीज़ है वो टोटली अलॉटमेंट के साथ था और वो भी कौन सा है, आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हुआ 10 + 5, इसका मतलब टोटल कितना हुआ 15 रुपीज़ टोटल आउटस्टैंडिंग हुआ। तो हम जिसका कॉल्ड अप करते हैं उसको क्या करेंगे, जितना अमाउंट कॉल्ड अप किया है कैपिटल का उसको क्या करेंगे, कैपिटल डेबिट। तो अब ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंस है, समझो। तो 7 नंबर का एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना कॉल्ड अप किया था, तो 800 शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं, उसके ऊपर कैपिटल का 20 रुपीज़ मीन्स कितना हुआ 16,000। जो प्रीमियम की अमाउंट है जो हमें नहीं मिल रही है, आउटस्टैंडिंग है, अगर वो पेड होती तो इग्नोर करते, लेकिन आउटस्टैंडिंग है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना, तो 800 शेयर पे 5 रुपीज़ के हिसाब से 4,000। ओके, अब किसका नहीं मिल रहा है, तो ये अलॉटमेंट का और इसका। जो मिला है उसको क्या करेंगे, जो पेड है उसको क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट करेंगे, और जो नहीं मिला है वो आउटस्टैंडिंग है तो उसको क्या करेंगे हम, तो टू, जो जब्त करना है उसको शेयर फॉरफीचर, डायरेक्ट फॉरफीचर रखेंगे तो भी चलेगा, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट कितना, तो 800 शेयर पे 10 रुपीज़ के हिसाब से 8,000। और जो नहीं मिला है वो किसका है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, वो कितना है 800 शेयर का 10 रुपीज़ के हिसाब से
8,000 और दूसरा 5 रुपीज़ कितना है, यहाँ 10 रुपीज़ है, यहाँ 20 रुपीज़ में आप देख सकते हो टोटल 15 रुपीज़ है, उसमें आपको कौन सा नहीं मिला है, तो अलॉटमेंट का 10 रुपीज़ और फर्स्ट कॉल का 5 रुपीज़ ऐसे। तो 5 रुपीज़ किसका है, फर्स्ट कॉल का। तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट कितना, 800 शेयर का 5 रुपीज़ के हिसाब से 8 फिफ्जा 4,000। तो इस तरह से आपकी एंट्री आएगी फॉरफीचर की। फिर से बताता हूँ कि आपने टोटल 25 रुपीज़ कॉल्ड अप किया है, उसमें से 20 रुपीज़ कैपिटल का है और 5 रुपीज़ प्रीमियम का है। 5 रुपीज़ प्रीमियम का नहीं मिला है, 20 में से 10 रुपीज़ मिला है और 10 रुपीज़ नहीं मिला है, तो टोटल आपको कितना नहीं मिला है, 15 रुपीज़ नहीं मिला है। तो 20 रुपीज़ कैपिटल डेबिट करेंगे और 5 रुपीज़ प्रीमियम नहीं मिला है, इसके लिए उसको भी डेबिट करेंगे। अगर ये मिल गया होता तो इसको इग्नोर ही करते, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि ये हमको नहीं मिला है। ओके, तो टोटल कितना डेबिट हुआ, तो 20 डेबिट हुआ, 5 डेबिट हुआ, 25 डेबिट हुआ और क्रेडिट ये 10 और ये 5। इस तरह से मीन्स ये 5 का मतलब क्या है, ये इस 10 में क्या है, अलॉटमेंट और कैपिटल का, फर्स्ट कॉल का, सॉरी, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का। तो अलॉटमेंट का 5 रुपीज़ और ये प्रीमियम का 5 रुपीज़, टोटल अलॉटमेंट का कितना रुपीज़, 10 रुपीज़ और फर्स्ट कॉल का कितना रुपीज़, 5 रुपीज़, वो क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से एंट्री आएगी। अब हम उसके बाद की एंट्री फाइनल कॉल की देखेंगे। तो उसमें क्या बताया है, फाइनल कॉल का कितना रुपीज़ कॉल्ड अप करना है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि फाइनल कॉल का कितना रुपीज़ कॉल्ड अप करना है, बाकी का 5 रुपीज़, और उसमें से भी 200 शेयर की अमाउंट नहीं मिल रही है। तो ये कितनी एंट्री थी, 7 एंट्री, अब आएगी 8 एंट्री। तो चलो फाइनल कॉल का 5 रुपीज़ कॉल्ड अप करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंस है, समझ लो। 8 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अब तक हम 20,000 शेयर पे अमाउंट कॉल्ड अप करते थे, लेकिन 20,000 शेयर पे अब हम नहीं कॉल्ड अप करेंगे, क्योंकि 800 शेयर हमने क्या कर दिया है, फॉरफिट कर दिया है। तो बाकी का कितना रहा, 19,200 शेयर, उसके पर हम कितना रुपीज़ कॉल्ड अप करेंगे, तो 5 रुपीज़ कॉल्ड अप करेंगे। तो 19,200 इंटू 5 कितना आएगा, तो आपको सिंपली करना है, 20,000 इंटू 5 करोगे तो 1 लाख आएगा और 800 इंटू 5 करोगे तो 4,000 आएगा। तो 1 लाख में से 4,000 माइनस करो तो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा 96,000 शेयर। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये पूरा अमाउंट जो है वो किसका अमाउंट है, तो कैपिटल का ही है, क्योंकि यहाँ प्रीमियम की अमाउंट है नहीं। तो 96,000 शेयर। अब इसमें नरेशन क्या लिखेंगे, तो आपको अब आना ही चाहिए कि बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 19,200 शेयर एट ₹5 ईच। अब इसके पर आपको 200 शेयर पे अमाउंट नहीं मिल रही है, तो जिसका मिलेगा इसका बैंक अकाउंट डेबिट, नहीं मिला उसका कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, ये टेम्पररी अकाउंट है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, तो ये क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। कितना आएगा, 96,000 शेयर। अब 96,000 शेयर में से आपको कॉल इन एरियर्स कितना है, 2,000 शेयर पे, 200 शेयर पे 5 रुपीज़ के हिसाब से 1,000। तो 96,000 में से 1,000 नहीं मिल रहा है, तो बाकी का कितना मिलेगा आपको, 95,000। अब उसकी नरेशन क्या लिखेंगे, तो बीइंग
क्या लिखेंगे? वेरी सिंपल, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 200 शेयर। अब हम उसमें क्या करेंगे? अब उसका अमाउंट भी हम जब्त कर लेंगे। तो अब जब्ती का पॉइंट आएगा यहाँ 200 शेयर का। तो पहले हमने मिस्टर देसाई का 800 शेयर का बात किया, अब ये मिस्टर शाह की बात है तो यहाँ आएगा मिस्टर शाह की बात का पॉइंट आएगा। तो मिस्टर शाह 200 शेयर पे नहीं मिल पे कर रहे हैं, तो मिस्टर शाह कितने शेयर होल्ड कर रहे हैं? 200 शेयर। अच्छा, उसके पर टोटल कॉल्ड अप कितना हुआ? फाइनल कॉल का पे नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब टोटल अमाउंट कॉल्ड अप किया है 30 रुपीज। इसमें से प्रीमियम का कितना और कैपिटल का कितना? तो कैपिटल 25 रुपीज और प्रीमियम 5 रुपीज। अब 25 रुपीज में से फाइनल कॉल का 5 रुपीज नहीं पे कर रहे, इसका मतलब 20 रुपीज पे किया है, और प्रीमियम का जो अमाउंट है वो अलॉटमेंट के साथ था। तो ये 200 शेयर पे कौन सा अमाउंट नहीं पे किया है? तो यहाँ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं पे किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फाइनल कॉल अलॉटमेंट का है वो पेड कर दिया है, तो अलॉटमेंट के साथ हमने प्रीमियम कॉल्ड अप किया था, तो डेट मीन्स प्रीमियम पेड। तो पेड किया हो तो उसको इग्नोर करना है। तो अब यही बाकी है, 25 रुपीज आपने कैपिटल कॉल्ड अप किया है, 20 पेड किया है तो वो शेयर फॉर फीचर, और नहीं पेड किया है तो वो फाइनल कॉल अकाउंट, कॉल इन एरियर्स क्रेडिट। तो अब इसकी एंट्री सिंपली आएगी, यहाँ समझ सकते हो आप। 10 नंबर की एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना रुपीज? 25 रुपीज। आप यहाँ समझ सकते हो 200 शेयर पे 25 रुपीज, 25 टू ज़ा 50, तो टोटल 5000 टू जो पेड किया है वो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, कितना? 20 रुपीज़ के हिसाब से 200 शेयर पे कितना आएगा? 4000 एंड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 5 रुपीज़ के हिसाब से 200 शेयर पे 1000। ये आपने नहीं पे किया। इसका नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग 200 शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। अब इसमें से आप कितने शेयर रीइश्यू कर रहे हैं? 800 शेयर। कितने में? 20 रुपीज़ में। तो बैंक अकाउंट डेबिट 800 शेयर इंटू 20 रुपीज़, कितना आएगा? 16,000। अच्छा, कैसे रीइश्यू कर रहे हैं? तो फिर से आप देख लो वो लैंग्वेज, यहाँ आपको समझ में आएगा कि उन लोगों ने क्या बताया है। तो आप यहाँ लास्ट लाइन फिर से देख सकते हैं, ऑफ दिस शेयर forfeited 800 share were issued sold to Mr. Patel, credited as a fully paid up rupees 20 per share, क्रेडिटेड एज अ फुल्ली पेड अप फॉर ₹20। यहाँ क्या लिखा है? क्रेडिटेड एज अ फुल्ली पेड अप। ये लैंग्वेज जो है ना वो इंपॉर्टेंस है, क्रेडिटेड एज अ फुल्ली पेड अप। इसका मतलब क्या हुआ? 25 रुपीज़ क्रेडिटेड फॉर ₹20। इसका मतलब ये जो सोल्ड किया है वो कितने में सोल्ड किया है? 20 रुपीज़ में। तो और ये 20 जो 800 शेयर थे वो किसके थे? तो लिखा है आपको यहाँ भी, क्या लिखा है देखो, द होल ऑफ मिस्टर देसाई शेयर, जो 800 शेयर था, टोटल हमने 1000 शेयर जब्त किया है। तो होल ऑफ मिस्टर देसाई शेयर मीन्स जो 1000 में से हमने जो फॉरफिट किया है 1000 शेयर, उसमें से 800 शेयर जो हम रीइश्यू कर रहे हैं वो पूरा मिस्टर देसाई का है। तो 800 शेयर 20 रुपीज़ में नहीं मिलता है, वो लॉस हुआ। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट 800 शेयर का
₹5 के हिसाब से 4,000 and 2 credited as a fully paid up to equity share capital account 800 शेयर into 25 तो उसका अमाउंट कितना आएगा 25 8 ज़ा 20,000। अब उसके नीचे 20 नंबर की एंट्री उसके नीचे एंट्री आएगी री इश्यू की। कितना री इश्यू कर रहे हैं आप तो 12 वाला 800 शेयर री इश्यू कर रहे हैं। अब ये जो शेयर फॉरफिट किया और री इश्यू किया उसमें जो नेट प्रॉफिट आएगा वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। तो आपने दो शेयर जब्त किया था, एक 800 शेयर और दूसरा था 200 शेयर। जो 800 शेयर जब्त किया था तो उसमें आपका प्रॉफिट कितना था तो यहाँ देख लो 800 शेयर वाला जो जब्त किया था उसमें आपका प्रॉफिट कितना था तो यहाँ आपको समझ में आएगा कितना प्रॉफिट था ₹10। शेयर फॉरफिचर अकाउंट क्रेडिट कितना किया था ₹10। तो यहाँ आपने पर शेयर कितना रुपीस क्रेडिट किया था ₹10 और जब री इश्यू किया तो उसमें डेबिट कितना हुआ ₹5। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ 10 10 ₹5। तो यहाँ 800 शेयर का ₹5 के हिसाब से कितना आएगा 4,000 क्या लिखेंगे बीइंग net profit on forfeited and reissue of share transferred to capital reserve account। इस तरह से एग्जाम्पल हम कैलकुलेट करेंगे। अब प्रो रेटा अलॉटमेंट का एग्जाम्पल स्टार्ट होगा। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक के एग्जाम्पल खूब मन लगा के आप इसको रिपीट करके रीड करें। कोई भी बात नहीं समझ में आए तो आप कॉल कर सकते हो या पर्सनली आ सकते हो। गुड डे, गुड बाय।